Respected students, welcome back everyone. Today's video is about types of DAX function. It is the 100% asked question in interview as well as simple question. Okay. In this video, I will explain you totally theoretically and orally properly what are the important types of DAX function. Okay. And their types and which of the DAX functions are used in real-time projects and when they will ask you what DAX function you should say in interview as well. Okay. So this question will be asked to a guy who is applying as a fresher or the one with 1 or 2 years of experience. The one with 4 or 5 years of experience, they will not ask, and even if they ask, they will ask in first technical round of interviews just to check that whether you are not getting confused between date and time DAX function and time intelligence or aggregation and filter. Just to check they will ask, but this question will come 100% the one who is fresher 1 to 3 years of experience. Okay, so while answering to this question, first you have to tell what are the types of DAX functions like aggregation, time, date and time, and then which DAX function is used for what. Okay. So and also I will tell you in this video which of the DAX functions are used in real time project. Okay, the real time at the end of the day, see, two things are the most important thing while preparing for interview or anything: the questions which will be asked in interview and the practical work which you have to do in real time. These are the most important thing. Okay, that's the reason why are we preparing so much. So let's start with the video. So before starting to the video, if you are new on our channel, make sure you are subscribing the channel and pressing bell icon for all upcoming videos, and follow us on social media. All the social media link, especially Instagram, LinkedIn, they are given in our description box. Okay. See, there are 5 types of DAX function. This is first is aggregation, second is date and time, third is time intelligence. Okay. The fourth is logical, and the fifth is filter function. Okay, so we will start with the video. And also see, there are two websites for which you can refer to the DAX. The first is DAX guide and second is the Microsoft website only. Just you have to type on Google Microsoft DAX function, it will directly redirect you to that main websites. These two websites you can refer for DAX. And the second most important thing, what I have to tell you, there are many DAX functions, like more than 1,000 DAX functions are there. And in every Power BI update, 2323 new DAX functions are coming. Make sure that no need to learn everything for interview. No need to learn. Only 50 to 60 DAX functions can help you conquer the interview for 1 or 2 years of experience, and 80 to 100 important DAX functions. From that 80 to 100 also, 25-30 are only important. That will help you to conquer 3-4 years of Power BI interview. Okay. So now let's properly start with aggregation function. So see, when the front person or interview panelist will ask you types of DAX function, start with aggregation functions. Okay, start with. See, in this you should start with sum max, average, min, max, count. See what sum, average, mean, max, count, what it is doing, you know that. ठीक है. जैसे कि अगर एक कॉलम होगा तो एक कॉलम का पूरा सम ये निकाल के देगा. तो आपको पता है कि इन पावर बीआई वाइल क्रिएटिंग द मेजर इंटेलिजेंस इज देयर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट सम, तो आगे फिर आपको टेबल लिखना है, कॉलम लिखना है, या फिर कौन सा फिल्टर पास करना है, ये खुद पावर भी आपको हेल्प करता है. ठीक है. तो फिर आपको ये भी चीज आप बता सकते हैं इंटरव्यू में कि आपको प्रॉपरली फुल नॉलेज या फिर क्विक मेजर्स के बारे में बता सकते हैं. ठीक है. तो आपको एग्रीगेशन फंक्शन में स्टार्ट सम से करना है, सम एक्स से. अभी ये जो एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं, वेदर इट इज सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट एक्स, जो भी है एक्स वाले, ये इटरेटर फंक्शंस बोलते हैं इसको. ठीक है. दे आर ऑल्सो कैटेगराइज एज इटरेटर फंक्शन. ये भी आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं. जो कि रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, रो लेवल पे काम करता है वो. ठीक है. सम और सम एक्स का डिफरेंस यही है कि सम कॉलम पे काम करता है, सम एक्स रो लेवल पे. जितने भी एक्स वाले ये फंक्शंस है, whether it is sum x, average x, whatever, they works on row context, also known as iterator function. तो आपको जब एग्रीगेशन की बात आएगी तो ये सारे इंपॉर्टेंट आप बता सकते हैं. अभी रियल टाइम में कौन से काम आते हैं मैं आपको बताता हूँ. 100% सम आता है, सम एक्स भी आता है, एवरेज भी आता है फिर ये काउंट एक आता है, मीन मैक्स,
डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट हाँ हम यूज करते हैं, मीन मैक्स भी आता है। जो रियल टाइम में यूजफुल है वही मैंने हमारे ये जो पावर पॉइंट पीपीटी प्रेजेंटेशन उसमें डाले मैंने, ठीक है। बट स्टिल काउंट इज ऑल्सो यूज, डिस्टिंग काउंट, काउंट एक्स इज ऑल्सो यूज, काउंट ब्लैंक इतना नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने भी बहुत कम बार यूज किया है। इवन काउंट रोज भी आई हैव यूज, नहीं इतना भी यूज नहीं किया मैंने वो। बट जो 100% यूज किया वो सम एक्स, एवरेज, एवरेज एक्स, एवरेज ए भी ज्यादा यूज नहीं किया, मीन मैक्स डिपेंड करता है, बट वो अगेन काउंट वी हैव यूज, लिस्टिंग काउंट, काउंट एक्स, ठीक है। ये है एग्रीगेशन फंक्शन। नाउ कमिंग टू सेकंड, डेट एंड टाइम फंक्शंस। देखो इसमें कैलेंडर, कैलेंडर ऑटो एक है। calendar auto say you know that we can create new table. For example, see if we have to create fiscal table, see tell these things in interview. For example, आपको जो फिजिकल ईयर होता है जो कि इंडिया में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, our year starts on, normal year starts on 1 January, but the fiscal year जो होता है ना, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आपको पता होगा 1 फरवरी पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो यूनियन बजट लेके आता है, तो 1 अप्रैल को हमारा फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है। अगर वैसा आपको टेबल बनाना है प्रॉपरली, फिर आपको एम एम डी डी वाई वाई फॉर्मेट में, हम देखो एक नया कैलकुलेट कॉलम बनाते हैं फॉर्मेट से, ये अगर सब करना है तो आपको कैलेंडर ऑटो से आप बनाते हैं, ठीक है। तो जब इफ योर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस डोमेन का आपका प्रोजेक्ट होगा, आपके प्रोजेक्ट्स के डोमेन्स भी होते हैं, वेदर योर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स आर नॉट देयर इन इंडिया मच बट इन फॉरेन दे आर, ओके। तो उस केस में आपको अगर फाइनेंस प्रोजेक्ट होगा तो कैलेंडर होता आप यूज करते हैं। ई डेट होता है, ई डेट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ टूडेज डेट इज 26/11, तो एग्जैक्टली आपको 2 महीना 3 महीना पीछे लेके जाता है, फॉर एग्जाम्पल 26 सितंबर ऐसा। ईओ मंथ क्या है, टूडेज डेट इज 26 नवंबर, तो आप ये महीने का ईओ मंथ देखोगे तो वो आपको 30 नवंबर पे लेके जाएगा, -1 देखोगे तो इट विल टेक यू टू 31 अक्टूबर, एंड +1 लेगो तो 31 दिसंबर, ऐसा है। टुडे मतलब आज की डेट, नाउ मतलब अभी का, डे मंथ क्वार्टर ईयर, ये मोस्टली प्रीवियस जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर मार्केट वैल्यू सेल्स वगैरह ना, तब आपको देखो डेट ऐड के साथ आप वो यूज करते हो, तो एंड में आपको डे मंथ क्वार्टर ईयर आप दे दो। वीक इसमें नहीं होता। डेट डिफ, व्हाट डज डेट डिफ डू, इट गिव्स डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर और 26 नवंबर है तो वो 26 देगा, डेट डिफरेंस देगा। वीक डे, वीक नंबर एक इंपॉर्टेंट है आपको, फॉर एग्जाम्पल इन अ ईयर 52 वीक्स आर देयर, तो कौन सा वीक अभी चालू है, अभी मुझे लगता है 48 या 49 होगा, बिल्कुल लास्ट वीक है नवंबर का, 48 49 होगा। वीक डे फिर वो यू कैन कैटेगराइज वीक डे वेदर टू स्टार्ट फ्रॉम संडे एज वन और मंडे एज अ वन, ठीक है। इफ योर मंडे इज वन देन योर संडे विल बी 7, ट्यूसडे विल बी सेकेंड, वेनेसडे विल बी थर्ड, ऐसा वीक डे आप कैलकुलेट करते हो। सो इनमें से रियल टाइम में कौन सा यूज होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। कैलेंडर ऑटो, कैलेंडर यूज किया जाता है, ई डेट, ईओ मंथ यूज किया जाता है, टुडे नाउ नहीं यूज किया जाता ज्यादा, ये डे मंथ क्वार्टर ईयर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। डेट डिफ यूज किया जाता है, एंड अगेन गोज टू वीक डे, वीक नंबर, ये भी डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन, बट 100% कौन से, ये ऊपर वाले चार और ये बीच वाला, सॉरी डेट डिफ वाला, ये दिस डे मंथ क्वार्टर डिपेंड्स। दिस इज ऑल अबाउट डेट एंड टाइम डैक्स फंक्शंस, ठीक है। कमिंग टू टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, देखो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डैक्स में। पहला तो MTD, QTD, YTD, what I have written here ना, MTD stands for month to date, QTD stands for quarter to date, YTD stands for year to date, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ टूडेज डेट इज 26 नवंबर, देन MTD will be calculated from 1st of November to 26th of November, QTD will be calculated from 1st of October to 26th of November, ठीक है। क्वार्टर मतलब आपको पता है इन एवरी ईयर देयर आर 4 क्वार्टर्स, जनवरी फरवरी मार्च इज फर्स्ट क्वार्टर, April May June is second quarter, July August September is third quarter, and last quarter is October November December. So if today's date is 26 November, it will calculate from 1st October to 26 November. And what is YTD? Year to date. ठीक है, the for example sales revenue जो भी हो in year to date it will calculate from 1st January to 26 November. ठीक है, तो ये टोटल MTD
टोटल क्यूटीडी, टोटल वाईटीडी, इसमें और भी डैक्स फंक्शंस है जैसे कि डेट्स एमटीडी, डेट्स वाईटीडी, डेट्स क्यूटीडी, बट डिपेंड्स अगर आपको फिल्टर यूज करना है या विदाउट फिल्टर आपको फिल्टर वगैरह नहीं लगाना तो उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है। कमिंग टू डेट ऐड, ये आपको ऐड करके देता है डेट। ठीक है। डेट्स बिटवीन, दो डेट के बीच में का है, डेट्स इन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू कैलकुलेट पास्ट 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ, 9 मंथ, तो उस केस में डेट्स बिटवीन, डेट्स इन पीरियड हम यूज करते हैं। पैरेलल पीरियड, सेम पीरियड लास्ट ईयर, इट विल डायरेक्टली टेक यू टू एग्जैक्ट डेट लास्ट ईयर। तो इस प्रकार से ये टाइम इंटेलिजेंस डैक्स फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसमें से रियल टाइम में कौन से यूज किए जाते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, वॉट एवर डैक्स फंक्शंस यू आर एबल टू सी इन दिस पावर पॉइंट हियर राइट नाउ, all the DAX functions are used in real time projects, and make sure while speaking in interview आप ये जितने भी लिखे हैं मैंने, एक दो नौ है, 8 है सॉरी, 8 के 8 DAX फंक्शन, अगर आपको फ्रीडम मिला बोलने में इंटरव्यू में, मेक श्योर यू आर स्पीकिंग ऑन दिस। ठीक है। लॉजिकल डैक्स फंक्शन, सी लॉजिकल डैक्स फंक्शंस, इसके सिवा आपका रिपोर्ट आगे जा नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी बोलता हूँ। ठीक है। इफ एंड और स्विच, नॉट, ट्रू, फॉल्स, ऐसे 6-7 ही है, बट ये बहुत है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशंस आती है जैसे कि नल लगाना है, नॉट नल, ऐसे वगैरह बहुत चीजें होती है रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। तो इफ एंड और स्विच, स्विच से देखिए आप, स्विच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि मैंने एक बोला था आपको, डायनामिक टेबल वगैरह बना के सारे मेजर्स आप डाल सकते हैं उसमें स्विच से, मैंने एक बार बताया था आपको, आपने अगर इफ यू हैव फॉलोड माय वीडियोस, आई हैव मेड दैट पावर बीआई इंपॉर्टेंट सिनेरियो वीडियो, इन दैट यू कैन फाइंड आउट। सो सी इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स व्हाट हैपन ना, जैसे कि ऐसी कोई रिकॉर्ड है, वैल्यू है, उसमें आपको कंकैटिनेशन करना है, या फिर ब्लैंक के लिए आपको पूरा, अगर वो ब्रैकेट्स आ रहे तो आपको निकालना है, तो ये जो इफ एंड और है ना, इससे ही सब होता है, और वो ब्लैंक एक होता है डैक्स, टैप करके फिर आप वो पैरेंथेसिस डाल सकते हैं। तो उस केस में ये लॉजिकल फंक्शन, या फिर आपको एक ऐसा कॉलम बनाना है, यू आर हैविंग फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू, और वो मिलियन बिलियन में, तो अगर मिलियन तक होगा तो लेस लिखने का, मोर देन बिलियन में होगा तो उसको हाई लिखने का, और ऐसा कैलकुलेट कॉलम करके बना के, देन we pass that in slicer, and then when we click in our Power BI report, it should get filter out on whole our that particular page or dashboard। तो इस ऐसे सिनेरियो में इफ एंड और ये जो लॉजिकल फंक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज किए जाते हैं। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आपका पावर बीआई का रिपोर्ट अगर बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ एक पेज का डैशबोर्ड वगैरह होगा, देन इन दैट केस ठीक है, बट सम ऑफ द पावर बीआई रिपोर्ट्स आर 10-12 पेजेस एंड दे गोज अराउंड 5 to 6 months यू वर्क ऑन दैट रिपोर्ट। तो ऐसा होगा ही नहीं कि विदाउट लॉजिकल फंक्शंस रिपोर्ट बन रहा है, नहीं, लॉजिकल फंक्शंस यू मस्ट नो। ठीक है। एंड मोस्टली कैलकुलेट कॉलम्स आर मेड विथ लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है। रादर देन मेजर्स, मेजर्स आर ऑल्सो मेड बट कैलकुलेट कॉलम्स आर मेड मोर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिल्टर फंक्शंस। देखो इसमें कैलकुलेट है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में, इन माय मेनी वीडियोस आई हैव टोल्ड यू दैट calculate dax function is the most powerful dax function in all the dax functions, whatever they are, they like more than 1000 dax functions are there. Calculate is the most powerful dax functions, and slicer is the most powerful visual, I have told you many times। ठीक है। तो देखिए कैलकुलेट से बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि फिल्टर आप लगा सकते हो उसमें, फिल्टर टैक्स फंक्शन से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप वो फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हो और सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है और आपको सिर्फ महाराष्ट्र का देखना है, तो वहां पे आप वो फिल्टर लगा सकते हो। कैलकुलेट टेबल से एक नया टेबल बना सकते हो, ऑल, ऑल एक्सेप्ट, ऑल सिलेक्टेड, इससे तो आप मतलब बहुत चीजें कर सकते हो। ऑल से फिल्टर्स पूरा निकाल सकते हो मॉडलिंग में जो है, एक्सेप्ट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड से जितना आपको चाहिए उस कॉलम पे, या फिर वो कॉलम छोड़ के देन यू कैन अप्लाई फिल्टर ऑन एवरीथिंग फॉर दिस ऑल, ऑल एक्सेप्ट, ऑल सिलेक्टेड। या फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका ये जो है फॉर एग्जांपल एडिट इंटरेक्शन से यू कैन डू क्रॉस हाईलाइट फिल्टरिंग, और इफ यू हैव टू डू विद डैक्स, देन फिर ये ऑल एक्सेप्ट और ऑल सिलेक्टेड आप यूज कर सकते हो उस केस में। ठीक है। कैलकुलेट से बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, वहाँ पे 1 2 3 फिल्टर लगा सकते हो, फिर उसके साथ आप एग्रीगेशंस वगैरह यूज कर सकते हो, मेजर भी पास कर सकते हो, अगर इफ मेजर इज ऑलरेडी बिल्ड यू कैन पास डायरेक्टली आफ्टर कैलकुलेट। ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शंस थे।
types of DAX function में first was aggregation we have seen, second was date and time, third was time intelligence, the fourth was logical functions, and the fifth was filter DAX function. ठीक है, I have told you and also in real time which are used here, all the DAX functions whatever you are able to see, calculate, calculate table, everything, all six, those are used in real time. Okay, mostly but all selected, all except जो है ना वो सिनेरियो पे होगा. अगर आपका मॉडलिंग होगा तो यूज किया जाएगा. अगर आपको एक व्यू मिला होगा, ठीक है, या फिर एक सिंपल टेबल मिला होगा एसक्यूएल या स्नोफ्लेक टीम से, देन इन दैट केस ऑल एक्सेप्ट ऑल सिलेक्टेड विल नॉट बी यूज मच. बट कैलकुलेट तो वो तो स्पाइनल कॉर्ड ही है, मोस्ट पावरफुल है, वो तो यूज होगा ही. ठीक है, अगर अभी इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपरली बताया कि इंटरव्यू में आपको कौन से डैक्स फंक्शंस बताने हैं, या फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट में विच ऑफ द डैक्स फंक्शंस आर 100% यूज, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड सिनेरियो विच डैक्स फंक्शंस विल आल्सो बी यूज्ड. ठीक है, so if you have any kind of doubt, make sure you are commenting. I will reply within 1 or 2 hours. And also if you are new on our channel, make sure you are subscribing, and if you like the video, like it and share with your friends. Thanks a lot everyone. Thanks for watching till end.